few weeks, Headlines Today has been investigating claims of love jihad. In our continuing coverage of what we call love to hate, we once again made our way through the hinterland of Western Uttar Pradesh, from where most of these cases of love jihad are being reported from. The saffron fringe in Western Uttar Pradesh is constantly accusing Muslim men of preying on innocent Hindu women. Well, we traveled through Western Uttar Pradesh, through the towns and the villages where the scars of communal disharmony are still very raw. This is our attempt to decipher the myth from the reality of love jihad. Meerut woke up to the scars and pain inflicted on Bhavna when a jilted lover threw acid on her. मैं दीदी के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से आई तो घर के सामने किसी में एसिड डाल दिया और कहा कि मेरी नहीं होगी तो किसी की नहीं होने दूंगा। Bhavna is a Hindu, her attacker a Muslim. The case branded as love jihad. ये 29 जून 2005 में हुआ था मेरे साथ। एक बुड्ढा था, मुझे परेशान करता था, मुझसे कहता था शादी करनी है। मुसलमान था, लेकिन मेरे पापा ने ये मना करा, पुलिस में भी रिपोर्ट करी, लेकिन वो बाज नहीं आया। उसके बाद मेरी सगाई हो गई थी, उसे पता चल गया, उसने मेरे पे एसिड डाल दिया। और आप उसको जानते थे, कभी उससे मिले थे या कुछ आपके बीच में कोई दोस्ती थी कभी भी, कि वो जैसे बोल रहे थे कि सडनली वो बस एक दिन आ गए, क्या हुआ था? दीदी एक्सपायर हुई थी, मुझे अब आया था हमारे यहाँ पर, बाकी हम मिले कभी नहीं थे उससे। आप जानते भी नहीं थे उससे? नहीं, मिले भी नहीं थे। The Janhit Krantikari Sangathan adopted Bhavna's fight, aided and funded her treatment and gave Bhavna another shot at life. But it was this case that initiated the discourse of love jihad on the streets of Meerut back in 2004. 2005 में हमने इस मुद्दे को उठाया और हमने सड़कों पे उतर के जो लड़कियों की जो प्रॉब्लम थी, उन्हें लड़के छेड़ते थे, उस पे हमने काम करा। और हमने 2-4-5 दिन के अंदर अंदर ये सामने आया कि जो लड़के थे वो अधिकांशतः जो है मुस्लिम निकलते थे और अपना नाम हिंदू बताते थे वो। तो जब तक तो हमें नहीं आभास था इस चीज़ का कि ये ऐसा कुछ मैटर चल रहा है। तो जब सड़कों पर हम आए तो हमें पता लगा कि मुस्लिम युवक और हिंदू लड़कियां, ये एक मैटर था सामने सबके। Bhavna's is at best a case of jilted love, far from the traditional definition of love jihad. Western Uttar Pradesh is battling the paranoia of love jihad, with the fringe group claiming that this is in fact a larger game plan for Islamization. But really, is it? Where is the evidence to prove that this is in fact a fully concocted larger game plan? The Uttar Pradesh BJP may have dropped the phrase love jihad from its official political resolution, but the baton has been successfully passed on to the fringe, reportedly being encouraged by the silent endorsement from the highest echelons of power. इस बारे में जो भी चर्चाएं हो रही हैं, उसमें ऐसा है या नहीं, इसका एक बार परीक्षण तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसी बातें कई बार सामने आई हैं। लेकिन तात्कालिक तौर पर ऐसी बातों पर मैं अपनी तरफ से कोई अधिकृत टिप्पणी नहीं कर सकती, और मैं ऐसे तथ्यों को हम नज़रअंदाज करें मैं ये भी नहीं कह सकती। मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें समीक्षा का विषय हैं और इन सारी चीज़ों पर ठीक से विचार होना चाहिए। दोनों समुदायों के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बैठ के विचार करना चाहिए। But there are many in power who acknowledge that crime against women is being given a communal color in the name of love jihad. Do you believe that crime against women is getting an increasingly communal picture? Yes, of course. Yeah, certainly. I think that is happening. That is a trend that we can see from all the recent incidents. That's very easy to say from that. The minority community too is crying foul, calling this an agenda to promote communal disharmony in Western Uttar Pradesh for political and electoral mileage. लव जिहाद के नाम से जो फितना हमारे हिंदुस्तान में शुरू किया गया है, इसके पीछे सारी साजिश आरएसएस की और
दूसरी ऐसी फ़िरक़ापरस्त पार्टियों की है जो मुल्क में मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान में नफ़रत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। नहीं, ये केसेस सब बनावटी केसेस है, बाकायदा बनाए जा रहे हैं, लोगों को खड़ा किया जा रहा है फ़र्जी नामों से, उनको मुसलमान बताकर कि ये मुसलमान हैं, और इस तरह का ये सारी की सारी साजिश की जा रही है। सरासर ये भी हमारे यहाँ किसी को ज़बरदस्ती किया नहीं जा सकता, न किसी को ज़बरदस्ती किसी शादी के लिए उकसाया जा सकता है। अगर लोग किसी लड़की और लड़के हिंदू और मुसलमान होता है, ये तो उनका पर्सनल मामला है। इसको बाकायदा पूरी एक कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक जो है एक मुहिम और एक उसके साजिश के तहत क्यों उठाया जा रहा है? भाई लव तो आज नहीं, हज़ारों साल से इस मुल्क में होता चला आया है। हिंदू और मुसलमानों में आपस में किसी ने किसी से शादी कर ली, किसी ने शादी उसके साथ कर ली। तो ये अकबर ने शादी कर ली जोधा भाई के साथ में, तो कोई हिंदुस्तान के उस वक्त के मुसलमानों हिंदुओं ने कोई मसला नहीं उठाया उसके खिलाफ। Young Muslim boys, disheartened and disillusioned with the state of affairs in Western Uttar Pradesh, are running out of patience. अभी तक तो बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा जैसे हमेशा बार बार इस मुद्दे को लेकर हमेशा हंगामा और हालात ख़राब होना, ऐसे हालात हो गए हैं पूरे मुल्क के अंदर, कहीं भी किसी भी मोड़ सांप्रदायिक दंगा दे देते हैं उसको। तो ऐसे हालात में बिल्कुल ये हालात हो रहे हैं कि पूरे मुल्क के जैसे कहीं भी कुछ भी दंगा हो सकता है किसी भी वक्त। अगर ऐसे हालात हुए तो मुसलमानों को फिर इसके बारे में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ज़माना व्हाट्सअप और फेसबुक का है, आदमी व्हाट्सअप पे जुड़ता है, फेसबुक पे जुड़ता है, उसके फ्रेंड्स हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, उनसे चैटिंग करता है घंटों घंटों। इसमें कोई ये मामला नहीं है कोई किसी को गुमराह कर रहा है। अब जिससे दिल मिल जाए इसमें कोई क्या कर सकता है? तो इसलिए ये कोई गुमराह करने वाली बात नहीं है। ये सब नफ़रत फैलाने के लिए ये बीजेपी और आरएसएस बीज बो रही है, जिसको उन्होंने देखा कि पिछले इलेक्शन में उन्होंने हिंदुओं के अंदर नफ़रत मुसलमानों के लिए पैदा की तो उन्हें फ़ायदा पहुंचा। अब वो यूपी में ये चाहते हैं कि मुसलमानों के अंदर, हिंदुओं के अंदर मुसलमानों के लिए नफ़रत पैदा करें ताकि वो आगे विधानसभा चुनाव में अपना फ़ायदा उठाएं। Lawyers fighting cases of forced conversions in Western Uttar Pradesh question how poor Muslim men can afford top lawyers to fight legal battles. Further, they add that love jihad is not so much about mistaken religious identity, but more about mistaken marital status. I would not certainly say no. It is not that always it is so. It does happen. They know their religion, and in most of the cases. But the point herein is they don't know their marital status. Right. Not exaggerated. The problem herein is if a stray incident happens, it may happen. It may be a love. It may be two persons are loving each other, no problem. It does happen. So in that case, there is no problem. What happens is after they get married, or they are supported by some vested interests also. And if a major person is marrying another major person, there is no problem. What happens is you are a married person, you are already having children, you have already 2 or 3 or multiple children, and then you are marrying away a young girl. One is that you are sending some boys to entice away the girls. I am not sure about this fact, but I am sure that later on they are being supported by some persons. That part is dead sure, and I have seen it in the courts. That is much evident in the courts. By the way they are being put, they are being well fed and well defended, and all this is all being seen there. Rattled Hindu fringe groups claim that these Muslim men are being fed, funded and fueled by a larger nexus to lure innocent Hindu women into matrimony by posing as Hindus and then forcing them to convert to Islam. Well, Headlines Today approach these fringe groups in Western Uttar Pradesh to point us in direction of cases of love jihad. While most of these cases of crime against women are genuine cases, women have been victimized, they've been brutalized, tortured and tormented. To categorize all of these cases of crime against women as love jihad is perhaps an exaggerated notion with little or no evidence on the ground. जो लोग छोटे छोटे कार्य करते हैं, जिनके घर में रोटी खाने के लिए भी नहीं होती है, उनको एक योजनाबद्ध तरीके से जो इस्लामिक संगठन हैं, मदरसे हैं, उनके माध्यम से उनको फंडिंग की जाती है, उनको मोटरसाइकिल दी जाती है, उनको सोने की चेन दी जाती है, उनको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, उनको लड़कियों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए, उनको कपड़े देने के लिए उनको पैसा दिया जाता है। और वो हिंदू लड़की को हाथ में कलावा बांध करके, माथे पर टीका लगा करके और इस प्रकार से उसका भावनात्मक शोषण करके उसको शादी तक ले जाते हैं।
और उसके बाद फिर वो अपना नाम, उनका जब पता लगता है कि वो मुस्लिम इलाके में ले जाते हैं, घर ले जाते हैं कि वो तो मुसलमान हैं, अपनी लड़कियों के माध्यम से वो मुस्लिम बच्चे पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू लड़कियों से शादी इसलिए कर रहे हैं कि मुस्लिम आबादी कैसे बढ़े। वो हिंदू लड़कियों के माध्यम से भी 4, 5, 6, 8 तक बच्चे पैदा करके अपनी आबादी बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से जो मस्जिदें हैं उनमें ज़कात इकट्ठी होती है, और मैं जानता हूँ, यहाँ पर नाम लेना ठीक नहीं है, इस प्रकार की मस्जिदें हैं हमारे शहर के अंदर जहाँ पर धन इकट्ठा किया जाता है समाज के द्वारा, और वह धन केवल इसी काम में खर्च होता है। और विशेष रूप से जब लड़का एक लड़की को भगा कर ले जाता है, उसके बाद के जितने भी खर्चे होते हैं लगभग 1.5-2 साल तक, जब तक कि वह संतान उत्पन्न नहीं कर देता है, तब तक उसको पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाता है, उसको फंडिंग की जाती है, उसके रहने की व्यवस्था की जाती है। और जब ये सब काम हो जाता है तो ये लोग उस लड़की को बहला फुसला कर और उसको टॉर्चर करके और विदेशों में भेज देते हैं। 13 kilometers from Meerut in Fafunda village, a girl was allegedly abducted from school and subsequently spotted by her village men living in a Muslim household. The family alleges she was kidnapped and forcefully converted. A Meerut court is yet to see her fate. जब लड़की का कोई पता नहीं चला तो हम जो है ढूंढते रहे, लड़की को ढूंढते रहे। फिर जो है हमें जो अगले दिन जो है दूसरे दिन हमने जो है, जब हमें कोई पता नहीं लगा, हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा दी। पता नहीं लड़की कहाँ गुम होगी, वैसी किसी को नहीं कहा जा सकता। फिर हमें अगले दिन ही हमारे गांव के 2 लड़कों ने हमें बताया कि वे सरकारी अस्पताल पर दवा लेने गए थे कि हमने फला आदमी की जात रहीमुद्दीन पीपली खड़ा के साथ में जाते देखा। ये जिहाद जो चल रहा है, इसमें मोटा पैसा मिलता है, उसी के बदौलत ये जो बड़े बड़े वकील कर लेते हैं, ये अपने सेटिंग कर लेते हैं कि दूसरा आदमी जो मिल नहीं पाता। फिर ये बताया गया था कि उन्हें जाति धर्मांतरण भी कर लिया और निकाह भी कर लिया। ये आपको किसने बताया? ये गांव की चर्चा, जैसे आम गांव में चर्चा चलती रहती है, जब हमें भैंस पता लगा कि ऐसा ऐसा कर लिया गया। Similarly, a few kilometers away from Deoband, Ambata Sekha village was a communal tinderbox after the alleged kidnapping of a Hindu girl on the day of her wedding. The accused, they claim, was a Muslim boy. उस दिन बारात के आने से पहले वो उसे सुबह ही सुबह उठा कर ले गए। फिर गांव में तनावपूर्ण हो गया जी, और उसकी मेरठ जाकर नोटरी कराई। फुलत में एक निकाहनामा फर्जी तैयार किया गया, जिसमें गवाह भी उन्होंने फर्जी दिए, और सब कुछ ये होकर फिर लड़की को इलाहाबाद ले गए कोर्ट मैरिज के लिए। लड़की वैसे तो जानती थी, भाई ये लड़का मोनू या सोनू नाम बता रखा था उसे, वैसे नहीं जानती थी। लेकिन उसके बाद तो जब बहकावे में आ जा, एक मौलवी के पास बताया, लड़की ने ले गए, वहाँ कुछ तागे तबीज़ वगैरह करवाए, उसे बहकाया, उसे कुछ नशे की चीज़ खाने में दी, और इस प्रकार से उसे बहकाते हुए इलाहाबाद ले गए। इलाहाबाद से लाकर फिर लड़की के बयान हुए, लड़की की शादी करा दी गई। हिंदू रीति रिवाज से हिंदू लड़के के साथ शादी करा दी गई। Muzaffarnagar riots accused Sangeet Som and members of all Hindu fringe groups convened a Hindu Mahapanchayat where they openly threatened that they would take away 10 Muslim girls for every Hindu kidnapped. ये पंचायत करने के बाद जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू ग्रुप्स जो हैं साथ में आके उन्होंने ये पंचायत की थी, ये पंचायत करने का मकसद क्या था? पंचायत मकसद यही, जब पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाती है तो समाज क्या करेगा? कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए तो कुछ ना कुछ आंदोलन संघर्ष उसे करना पड़ता है। हम दबाव बनाने के लिए ये काम करते हैं। समाज में हम लोगों को जिंदा रहना है, और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे हिंदुस्तान के अंदर पैसा आ रहा है, और जितने इस देश के अंदर मदरसे हैं उन मदरसों में योजनाबद्ध तरीके से ये काम चल रहा है। The families of both these alleged victims cannot confirm what happened to their daughters. While most cases on the ground do not fit into the traditional definition of love jihad, the unwillingness of the victim to come out with her story or the admission of love has left more than enough room for misrepresentation and manipulation of fact. You are watching our continuing coverage on the ground realities of love jihad in western Uttar Pradesh. We're still trying to unearth at least one case that would substantiate
as an example or as an evidence of what the right-wing radical Hindu groups claim to be love jihad. So far, we have absolutely no evidence, but we continue our search in Saharanpur that not too long ago saw rioting and arson in the name of religion. जब तक भारत भूमि से ये लव जिहाद जड़ से खत्म नहीं हो जाएगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैं अपनी बहन बेटियों के विरुद्ध। Trying to limp back to normalcy after the dreadful riots and loss of lives, there are armies of a different kind still out on the streets of the town. लव जिहाद बंद करो, बंद करो, बंद करो। लव जिहाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। These are supremacist men without uniform who believe in the right to disseminate information. They are canvassing to spread awareness against love jihad. हमारी बहन बेटी को गुमराह किया जाता है। They light lamps and pledge to protect the dignity of innocent Hindu girls from praying Muslim men. मैं अपनी बहन बेटियों के विरुद्ध चल रहे लव जिहाद के विरुद्ध युद्ध का ऐलान करता हूं। हमारी स्टार्टिंग रही है, अगर हमारी बहन बेटी की तरफ कोई भी व्यक्ति आंख उठा के देखेगा आने वाले कल में, अभी भी हम संघर्ष करें। अब ये आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन चुकी है। जो भी हमारी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखेगा उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पूरे वेस्ट भारत में आज इसी कारण दंगे हो रहे हैं। 100 में से 99 दंगों का मुख्य कारण लव जिहाद है, क्योंकि बहन बेटी को गुमराह करके लव जिहाद के शिकार में बता के उनका अपहरण करके उनको विदेशों में भेजा जाता है, केरल के रास्ते जाया जाता है और पीछे कोई कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई ना होने के कारण लोगों में आक्रोश पैदा होता है, जुनून पैदा होता है। लोग अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए, हमारे इतिहास में जिंदा चिताओं में हमारी बहनें जली हैं, उनकी रक्षा के लिए हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। Saharanpur was shocked by the case of a young college girl lured by her best friend who posed as Avni Tyagi and turned out to be Reshma. The victim now claims that black magic was used to influence her into following Islam for 1 full month, before she was diagnosed and apparently cured by Hindu sadhus. उसने मुझे अपना नाम अवनी त्यागी बताया था, और बट जब उसका नाम मुझे बाद में पता चला कि उसका नाम रेशमा था। मतलब रेशमा वो अवनी बन के मेरे साथ अच्छी दोस्ती उसने कर ली, और फिर उसने अपने ब्रदर्स के कहने पे मतलब लंच लाना, और मैंने उसके साथ बैठ के लंच एक साथ किया करते थे। मुझे उसके साथ इतना ज़्यादा विश्वास था, मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी। उसके साथ खाना खाया करती थी, एक साथ हम कहीं भी कुछ करना हो एक साथ जाया करते थे। और फिर ऐसे ही एक दिन खाने में कुछ लेकर आई, मतलब उसने खाने के थ्रू ही उसने कुछ उसमें आजकल जो टोटके वगैरह होते हैं जो तो खाने में कुछ मिलावट कर दी। हाँ जी, खाने में उसने कुछ मिलावट कर दी थी, जिसे खाते ही मतलब थोड़े दिन बाद असर होता चला गया और मेरा बिहेवियर बिल्कुल चेंज होता चला गया। मैं अपने घर वालों से लड़ना, उनसे बोलना, उनसे ना बोलना, मतलब हर तरीका उनका अपनाने लगी। जैसे मोहम्मदन धर्म में अपनाया जाता है वैसे उनका रहन सहन, और जब उनकी नमाज होती थी मैं वैसे ही पढ़ने की कोशिश करती थी। मेरी हालत बिल्कुल बेकार होती जा रही थी, मैं ढंग से खाना नहीं खाती थी, एकदम मेरी हालत बेकार, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या है, और मुझे अपनों से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। और फिर किसी अच्छे ज्योतिषी से मिले, वहाँ पर उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ टोटका किया हुआ है अपने वश में करने के लिए। ये सब वो अपने वश में करने के लिए ऐसा उन्होंने जाल बिछाया हुआ था। There is no duped matrimony and no apparent forced conversion. Yet the fringe continues to cite these cases as examples for propagating the theory on love jihad. In the same town, however, there is a Hindu girl happily married to a Muslim boy and claims that love jihad is a myth to propagate hatred. कोई ज़रूरी नहीं कि हिंदू लड़की से प्यार हुआ, ये मुस्लिम भी हो सकती थी, क्रिश्चियन भी हो सकती थी, सिख भी हो सकती थी। कोई चुनाव मैंने धर्म को लेकर चुनाव नहीं किया है। प्यार और जिहाद तो दे आर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, और ये इस तरह करके अगर ऐसा हो रहा है, देखिए मेरे नॉलेज में तो इस तरह से कुछ है नहीं मामला कि इस तरह से कुछ हो रहा है कि प्यार करके छोड़ देते हैं इंटेंशनली, तो ऐसा तो मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। प्यार अपनी जगह है और
प्यार कोई धर्म नहीं देखता है, कोई कास्ट और क्रीड नहीं देखता है। तो इस बारे में तो मेरा मानना यही है कि इसको धार्मिक रूप से ना देखा जाए, इस प्यार को धार्मिक रूप से ना देखा जाए। हम भी अक्सर न्यूज़ में देखते हैं, पेपर्स में पढ़ते हैं, लव एंड जिहाद, लव एंड जिहाद। इसका मतलब ही नहीं समझ आता है आज तक कि लव एंड जिहाद क्या है। प्यार तो प्यार होता है। हिंदू सोसाइटी के उन्होंने काफ़ी मेरे पापा को परेशान किया कि तुम्हारी बेटी मुसलमान परिवार में चली गई है, तुम क्यों नहीं करते। तब मेरे फादर ने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी अपनी मर्ज़ी से की है और किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ बकवास है और इन बातों की तरफ नहीं सोचना चाहिए और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिहाद से या प्यार। तो जहाँ प्यार होता है वहाँ ऐसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। सब बकवास है, बस मैं यही कहना चाहूँगी। The Army Against Love Jihad claims they only fight love jihad but not true love. But who makes the distinction and who distinguishes one from another? Crime against women in Western Uttar Pradesh is increasingly being given a communal color in an attempt to polarize an already deeply divided Western Uttar Pradesh. According to data that has been sourced by the state government, out of 343 cases of rape that were reported between the 1st of January and the 15th of August in 2014, only 48 cases were Hindu-Muslim, making it difficult to ascertain whether the accused were from the majority community or from the minority community. So there is very little statistical data, very little empirical evidence, and almost no reality on the ground that substantiate claims of love jihad, forcing us to arrive at a conclusion that this concept of love jihad seems to reek of divisive politics to mold perception to suit one's own agenda.